Okay, friends, uh, we are starting the discussion on Gita, the fifth chapter. Acha, before I start the chapter proper, I'll have a quick look at the email which I had sent to you. And okay, of course, this is what all of you are aware, Sapekshvad and Raso Vai Saha. And I'm just repeating that we try to refer to Swami Ram Sukhdas ji's commentary so that everybody has a similar material before him or her, and then we are at the same wavelength because Gita is such a Shastra where more than 1,000 people have written commentaries, and on the same slok, five people may have six opinions. So it is better that all of us may have a common book with us. Uh, One point I wanted to discuss very briefly, which we have during the last month exchanged on the WhatsApp, is that in Hindu Dharma, democracy and Anekantvad have been accepted as normal to the highest extent. Because first of all, in Hindu Dharma, everybody has his own personal God. And you have so many angels and gods and goddesses, you select whom you like. At the end of the day, as said by Krishna Bhagavan in Gita, whomsoever you worship, your bhakti ultimately comes to me. And you may be surprised, there is a Supreme Court decision on this matter. There was a matter of a deity and liable to tax or not, and the matter went to Supreme Court. The judges referred to Upanishads, and they said, आप अगर वो पेपर की छवि को पूजा करते हो, मेटल पर छवि है उसकी पूजा करते हो, या पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो, किसी की भी पूजा करते हो, अल्टीमेटली इट ऑल रीचेस टू वन गॉड। तो एक गॉड है, उसके अनेक नाम है, अनेक रूप है, आपको जिसको भजना है भजो। अच्छा, वो उसके सिवा ये तो एक पहली बात हुई। फिर हमारे षड दर्शन है। षड मतलब छह, सिक्स दर्शंस। हम्म तो छह दर्शन का, और छह दर्शन अगर आप खाली समरी भी पढ़ो, हाँ, विकिपीडिया गिव्स समरीज एंड दे आर गुड समरीज, then you will see that there is a difference of opinion among the six darshans also. Like the first darshan, it is said, I mean, there is no proof about it because this is many thousand of years ago. Kapil Muni had written Sankhya Darshan. Now, what Kapil Muni had written, that book is not available only. But thereafter, maybe say 1,000 years before today, 2,000 years before today, somebody would have written a commentary on Sankhya Darshan. Those books are available. So based on that, people are have now written, short books on Sankhya Darshan, and those books are available. Now, Sankhya Darshan primarily does not believe in God. In Hindu Dharma, God is the ultimate. In Vedant also, they use the term Brahman. Brahman is the ultimate divinity. Hmm. But Sankhya Darshan doesn't talk of it. And Sankhya Darshan का एक अर्थ है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब एनालिसिस। तो कपिल मुनि ने बहुत कुछ एनालिसिस किया है। उनका पहला एनालिसिस था कि संसार में पुरुष है और प्रकृति है। एक्चुअली संसार में शब्द यूज करना बराबर नहीं है, बट एक पुरुष है, एक प्रकृति है। उन्होंने ब्राह्मण शब्द भी उपयोग नहीं किया है, मगर हम जो ब्राह्मण के लिए मानते हैं वो उन्होंने पुरुष के लिए लिखा है। या तो हम जो निर्गुण ब्राह्मण मानते हैं वो कपिल मुनि ने पुरुष के लिए लिखा। ये पुरुष और प्रकृति
का मतलब कोई नहीं है कि जो हम यहाँ अभी एक मैन एंड वुमन समझते, एक स्त्री और पुरुष समझते, उससे बिल्कुल अलग बात है। पुरुष मतलब द अल्टीमेट डिविनिटी, और प्रकृति, वी ऑल नो दैट इज द नेचर। कुछ लोग उसे माया कहते हैं, मगर सांख्य दर्शन के हिसाब से प्रकृति शब्द बराबर है। तो पुरुष is a Shakti. There is no form of Purush. It is just an energy that is quiet, that is in the bliss. It doesn't do anything, doesn't experience anything except joy. When Purush meets Prakriti, तभी संसार आता है, और हम सब उसके परिणाम है। तो ये तो जैसे दूध में छाछ मिलाई तो दही बना। अभी इसमें स्त्रीलिंग और पुरुष पुल्लिंग ऐसा कुछ नहीं आता है। ये दोनों की शादी हुई और उनके बच्चे हुए, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई चीज बात नहीं है। पुरुष और प्रकृति दो शक्तियां हैं। हाँ। अच्छा, अभी वो ईश्वर को मानते नहीं है। हिंदू धर्म ईश्वर में मानते हैं। रमेश भाई वेलकम। अच्छा, उनका अभी म्यूट मोड में है, साइलेंट मोड में है। नहीं, आप कंटिन्यू रखिए हाँ सर। जी, हाँ। अच्छा, मगर गीता में जैसे हम आगे चलेंगे, तो गीता में भी पुरुष और प्रकृति का विवरण किया है, और थोड़े से श्लोक है जिसमें समझाया है क्या पुरुष का काम है, क्या प्रकृति का काम है। आप देखेंगे तो सेकंड चैप्टर ऑफ गीता सांख्य योग के नाम से है। वो सांख्य योग और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन दोनों अलग है। हाँ। अच्छा, गीता में सेकंड चैप्टर में वेदांत की बात आती है, मगर वहाँ वेदांत शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, उपनिषद शब्द का भी उपयोग नहीं हुआ है। और पूरी गीता जब हम देखेंगे, बहुत सारे उपनिषद के श्लोक वहाँ डायरेक्टली लिए हुए हैं। कुछ श्लोक में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, और कुछ श्लोक वर्बेटिम है। तो कृष्ण भगवान ने छह दर्शन में से जो भी उनको अच्छा लगा वो गीता में इंक्लूड किया है। तो छह दर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि वो छह धर्म अलग अलग हो गए, सब के सब हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म में अलग अलग कंसेप्ट है। अगर आप ज्यादातर अगर कोई 10 साधुओं के ऐसे पढ़ोगे, तो 10 में से 7 या 8 तो ये लिखेंगे पुरुष और प्रकृति। तो सांख्य दर्शन तो उधर आ ही जाता है। मगर ये ख्याल रखना है, वेदांत में पुरुष और प्रकृति ऐसा कंसेप्ट नहीं है। वेदांत में माया का कंसेप्ट भी नहीं है। वेदांत सिंपली ये कहता है ब्रह्मन है, खाली ब्रह्मन है, ब्रह्मन के सिवा और कुछ भी नहीं है। हाँ। और माया की शक्ति वगैरह या प्रकृति की शक्ति वगैरह, वो कोई सेपरेट अस्तित्व नहीं है। जैसे हम कहते हैं शंकर भगवान और पार्वती दो अलग व्यक्ति है, दोनों की शादी होती है वगैरह वगैरह। तो हिंदू धर्म में इसके ऊपर बहुत शंकर पुराण है वगैरह, बहुत सारी वार्ताएं हैं। वेदांत ऐसा नहीं कहता है। वेदांत कहता है ब्रह्म है, ब्रह्म की खुद की शक्ति है। उसे संसार उत्पन्न करने के लिए और किसी चीज की और किसी शक्ति की और किसी पावर की उसे जरूरत नहीं है। ब्रह्मन अपने आप में ओमनी पोटेंट है। ओमनी पोटेंट मतलब क्या? वो जो भी करना चाहे सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, अशक्य नहीं है। ये वेदांत की मान्यता है। हमने तो जब से शुरू किया, हमारा एम्फोसिस रहा है वेदांत पर। वेदांत, अगर मुझे पूरा पक्का नहीं मालूम है, मगर अगर क्रोनोलॉजी में देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे वो सिक्स्थ और या तो अल्टीमेट फिलोसॉफी है। दर्शन का मतलब है फिलोसॉफी। तो एक के बाद एक फिलोसॉफी डेवलप होती गई। जूनी फिलोसॉफी के ऊपर नवी आई, तो उसका मतलब नहीं कि जूनी फिलोसॉफी डिस्कार्ड कर दिया। पतंजलि योग सूत्र सांख्य दर्शन के बाद में आया। और पतंजलि योग सूत्र के बारे में इतना नक्की है कि पतंजलि मुनि ने उसे कंपाइल किया। मगर पतंजलि मुनि ने कंपाइलेशन किया, उसके पहले हिंदू साधुओं ने वो योग शास्त्र साधना ध्यान वगैरह का तो पहले से अभ्यास किया हुआ था।
उन्होंने इस तरह से सिस्टमेटिकली किसी ने कंपाइल नहीं किया था। अभी पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग मतलब 8 स्टेप्स। हाँ, आपको यम नियम का पालन करना है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, हिंसा की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी मैं भूल गया हूँ, मगर वो 8 स्टेप्स है। अगर जैन धर्म देखेंगे तो पतंजलि योग सूत्र के 8 स्टेप्स में से एक स्टेप उठा के उसके ऊपर एम्फसिस किया है। और जैन धर्म में कहते हैं 5 महाव्रत। वो 5 महाव्रत यम नियम का ही भाग है। बौद्ध धर्म में भी वो लोग जो महत्व देते हैं कि भाई ऐसे करोगे तो आपका निर्वाण होगा, वो पतंजलि योग सूत्र का ही भाग है। मतलब कि ये लोग इतने बड़े साधु हो गए, उन्होंने इतना बड़ा थिंकिंग किया होगा, मेडिटेशन किया होगा। अल्टीमेटली उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, तो उसके बाद में जो बड़े बड़े साधु आए, सब लोगों ने वो ज्यादातर एक्सेप्ट किया है। कुछ भाग उन्होंने नकारा होगा, मगर ज्यादातर चीजें एक्सेप्ट की है। अच्छा, ये मैंने आगे एक बार लिखा था अपना फिलोसॉफी ग्रुप में, शायद ईमेल में या व्हाट्सएप में, कि हिंदू धर्म में ये सभी आइडियाज आ जाती है, सभी मिक्स होता है। तो मेरे एक फ्रेंड की वाइफ है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो पूछ रही थी कि इसमें से अल्टीमेट ट्रुथ क्या। तो अल्टीमेट ट्रुथ के ऊपर जगत गुरु शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जवाब दे दिया, भैया आपके दिल को जो अच्छा लगे वो आपके लिए फाइनल है। हाँ, अभी आपको ये प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है कि ये 6 में से एक ही सत्य है और बाकी 5 असत्य है, या तो मैं सत्य हूं और दूसरे लोग जो मेरे से अलग मानते हैं वो उनकी मान्यताएं गलत है। ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपना मानो, दूसरे को दूसरा मानने दो, सब अपनी अपनी तरफ से जियो। दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ हिंदू धर्म, एंड आई रियली लव इट। अच्छा, इसके ऊपर कुछ कमेंट्स किसी की है, या तो आई विल प्रोसीड फर्दर। नहीं सर। ओके। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़े सवाल पूछता हूँ। गीता इज मोक्ष शास्त्र, ये हमने डिस्कस किया है। और गीता हमें 3 रास्ते बताती है। फॉर मोक्ष बोलो, सेल्फ रियलाइजेशन बोलो, ईश्वर के रियलाइजेशन बोलो, जो भी बोलो। निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये 3 शास्त्र हमें दिए, 3 रास्ते बताए हैं कि आपके अल्टीमेट गोल इस तरह से आप पा सकते हो। उसके सिवा कोई रास्ता है कि नहीं, ये मेरा सवाल है आपको। गीता ने 3 रास्ते बताए, कोई चौथा रास्ता है, पांचवा रास्ता है कि नहीं? मैं आपको थोड़ी मदद करता हूँ, जो बोलते हैं ना, टिप्स देता हूँ। हाँ, दे दीजिए सर। दुनिया में आज की तारीख में 8 अरब इंसान है। हाँ। हम्म, उसमें से हिंदू कितने हैं? करीब 1 अरब। तो मान लो कि मेजोरिटी ऑफ द 7 बिलियन पीपल हैव नॉट इवन रेड गीता। बराबर है। हम्म। अच्छा, 1 अरब जो हिंदू है, उसमें से कितने लोगों ने गीता पढ़ी होगी, कितने लोगों ने उसका अपने जीवन में अमल किया होगा? तो मेरे ख्याल से वो फिगर बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, गीता को पढ़ना, समझना और जीवन में आचरण में लाना। हाँ, गीता आगे हम चलेंगे तो आएगा कि भाई आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति जो ऑनेस्टी से, एथिकल जो काम करते हैं, उसी को मिलती है। आसुरी संपत्ति कैसे भी मिल सकती है। हम्म। तो वहां सब ये ऑनेस्टी वगैरह आ जाता है। कितने हिंदू लोग ऑनेस्ट होंगे? मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि दूसरे लोग ज्यादा होंगे, मगर ये 8 में से 7 को तो हाँ। निकाल दिया उन्होंने, तो गीता पढ़ी भी नहीं है। अभी 1 अरब में से मुश्किल से 10 लाख लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें से मुश्किल से 1 लाख लोग
गीता का अपने जीवन में आचरण करते होंगे। अच्छा, आचरण करने वाले और 5 लाख लोग होंगे जिन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं है, क्योंकि गीता एक शास्त्र है, मगर वो जो शास्त्र सनातन शास्त्र है। ऐसा नहीं कि महाभारत लिखा गया तभी गीता पब्लिसिटी हुई। हाँ, क्योंकि जो ऑनेस्ट है वो दिल से ऑनेस्ट है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है कि तुम ऑनेस्ट बनो। हाँ, कृष्ण कुमार जी जब फाइनेंशियल परिस्थिति उनकी बहुत डिफिकल्ट थी, तभी भी चैरिटी करते थे। उन्होंने उनको किसी ने बताया नहीं कि भैया तू चैरिटी कर। क्यों करते थे? ये उनका स्वभाव है। जो ऑनेस्ट है वो अपने स्वभाव से ऑनेस्ट है। वो पाप के डर से ऑनेस्ट रहते हैं ऐसा नहीं है, पुण्य की लालच में ऑनेस्ट होते हैं ऐसा भी नहीं है। तो जो भी आदमी गीता में बताए रास्ते पर चलता है, उन्होंने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो सब मोक्ष के अधिकारी तो है ही। इससे आगे अल्टीमेट चीज ये है जो कन्वर्सेशन विद गॉड में कही है, जिसमें अपने मित्रों में से कुछ लोग कन्वर्सेशन विद गॉड को नहीं मानते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक। उसमें कहा है अभी मैं थोड़ा मिक्स करता हूँ, कि हिंदू धर्म में कहा है, वेदांत में कहा है कि यू आर ब्रह्मन तत्वमसि। हम्म, तो होम विद गॉड कहती है तुम्हारा मृत्यु होएगा। वो तो एक्चुअली उसका फर्स्ट फंटास्टिक स्टेटमेंट है, डेथ द वे वी अंडरस्टैंड डेथ डज नॉट एग्जिस्ट। आप कभी मर ही नहीं सकते हो क्योंकि आप तो आत्मा हो। हिंदू धर्म कितनी बार कहता है यू आर नॉट बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, यू आर आत्मा। अच्छा, आत्मा अमर है, वो भी किया कहा है। तो थर्ड स्टेप इज लॉजिकल कि डेथ हो ही नहीं सकता है। क्या है डेथ? वो कन्वर्सेशन विद होम विद गॉड में ये समझाया है। अगेन मैं अपने हिंदी शब्द यूज करता हूं कि शरीर जो है, शरीर मन और बुद्धि पंच महाभूत के बने हुए हैं। आत्मा एक अलग ही अस्तित्व है, वो किसी से बना हुआ ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। जब आत्मा मतलब पहले एक सिंपल स्टेटमेंट है कि जिस तरह से हम रोज कपड़े बदलते हैं, इसी तरह से आत्मा शरीर बदलता है। वो एक शरीर अभी समझो कृष्ण कुमार जी को ऑफिस जाने का है तो अलग कपड़े पहनेंगे, वो घर में है तो शायद नाइट ड्रेस पहनेंगे। ऐसा अपना सभी का है, अलग अलग ओकेशन के लिए अलग अलग ड्रेस होते हैं। आप शादी में जा रहे हैं तो कम्प्लीटली अलग ड्रेस होगा, और आप स्पोर्ट्स खेलने को जाते हो तो अलग ड्रेस रहेगा। आत्मा को जो अनुभव करना है उसके मुताबिक वो शरीर धारण करता है। जब वो शरीर को डिस्कार्ड करता है, मतलब हम शाम को घर पे गए, कपड़े निकाल के कबाड़ में रख दिए, दूसरे कपड़े पहन लिए, उसको हम डेथ कहते हैं। अदरवाइज आत्मा की तो डेथ होती ही नहीं है। तो मोक्ष किसका होता है भैया? प्रेमानंद स्वामी ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। अगर अद्वैत वेदांत मानते हो तो मोक्ष मतलब क्या? आप तो हमेशा आपका मोक्ष है। इसके लिए शब्द यूज किया है, प्राप्तस्य प्राप्ति। प्राप्तस्य मतलब जो आपके पास है उसी की आप प्राप्ति कर रहे हो। मेरे पास ये चश्मा पहना हुआ है, अशोक भाई ने, कृष्ण कुमार जी ने चश्मा पहना हुआ है, अभी मैं चश्मा ढूंढ रहा हूं, मुझे याद नहीं है चश्मा कहाँ रखा। बस इसी को भ्रम है, और ये भ्रम में संसार चलता है। और प्रेमानंद स्वामी ने स्पष्ट कहा है, अगर आप लोगों ने उनका वीडियो सुना होगा, तो एक भक्त जो उनकी छोटी सी सभा होती है, उनके सत्संग में 30-40 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं। एक इंसान ने पूछा कि स्वामी जी, अद्वैत है, आप बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर मोक्ष किसका होता है? उन्होंने कहा मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है, वो तुम्हारा जो भ्रम है वो भ्रम दूर होता है, बस और कुछ नहीं है। अपना अपना भ्रम दूर करने के ये प्रयत्न है। हम जो सत्संग कर रहे हैं वो भी वही प्रयत्न है। बाकी कुछ भी नहीं करेगा एक इंसान, समझो कुछ भी नहीं करेगा, उसका मोक्ष नक्की है।
मोक्ष मतलब उसका भ्रम का निर्वाण, भ्रम का निरसन शब्द एक टिपिकली करेक्ट शब्द है। भ्रम निकल गया, उसका इल्यूजन टूट गया। इल्यूजन टूटा, उसे पता चला कि मैं खुद परमात्मा हूं, बात खत्म हो गई। तो गीता होवे या न होवे, बाइबल होवे या न होवे, कुरान होवे या न होवे, आपका मोक्ष नक्की है, ये वेदांत कहता है। और स्वामी अनुभव नहीं, सर्वप्रियानंद जी ये कहते हैं कि वेदांत की सबसे बड़ी भेंट ये है। वेदांत ये कहता है आप अभी इसी वक्त जहां बैठे हो वहां आप ब्रह्मन हो। अभी आपको किसी चीज की डर डर की कोई जरूरत ही नहीं है, खाली अपना भ्रम को दूर करना है, उतना ही है। हम्म, तो गीता होवे या न होवे, ये मेरे सवाल का मेरा जवाब है, आपका मोक्ष नक्की है। आगे, कैन यू डिसएग्री विद गीता? कैन यू डिसएग्री विद स्वामी राम सुखदास जी? ये सेकंड सवाल है, अगर कोई जवाब देना चाहे तो। नो। यू कैन नॉट डिसएग्री, ओके। और किसी का जवाब? अशोक भाई? यस सर। नहीं नहीं, नॉट। नो हाँ वो यू। मतलब नॉट विद रेफरेंस टू गीता, पर हाँ जैसे मेरा वो पहले वाला स्टैंड रहा है कि हाँ। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि वो तो सही है कि एट दिस मोमेंट आई एम ब्रह्मन, यस। पर मेरा मोक्ष निश्चित है, यहां तक भी एग्रीड। कब? हम्म। ज- वो सुनिए, तो अगर मैं कहूंगा मेरा मोक्ष निश्चित है, हाँ। तो फिर कर्म का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इट्स बराबर। तो ये सेम द ओनली। जगत गुरु जो अशोक हाँ भाई, हाँ। एटलीस्ट आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग एन ऑथोरिटी बिफोर यू, यू हम्म स्टिल मे नॉट एग्री विथ इट, बट मेरा जो अपने झरना जी की से मुझे जो मीटिंग हुई जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, हम्म उन्होंने कहा कि हाँ, तुम ब्राह्मण हो, ओके, तो मौत का सवाल नहीं, मोक्ष का सवाल नहीं, मगर तुमने जीवात्मा बने हो, देह धारण किया है। उसका मतलब कि अभी हम लोग सब अज्ञान में घूम रहे हैं। यस। हाँ। अच्छा, अज्ञान में क्या होता है, ये भी एक हमारा आगे चर्चा हो गई थी कि मुझे बहुत सारी कामनाएं हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे कश्मीर घूमने को जाने का, मैं जाऊंगा तो बहुत आनंद होगा, मुझे गुलाब जामुन मिलेगा तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये मेरा भ्रम है, क्योंकि ब्रह्मन का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। अच्छा, अभी अपना गीता जो निष्काम कर्मयोग पर, मेरे ख्याल से मोरोलेस 16 चैप्टर में उसके ऊपर उनका डिस्कशन आता है, या तो मैसेज आता है कि आप निष्काम बनो। क्यों? जब तक कामना है तब तक अपने जन्म चालू रहेंगे। हाँ। और ये कृष्ण कुमार जी ने मुझे समझाया था कि पीपल का पेड़ है, हाँ, एक पेड़ में से हजारों बीज निकलते हैं, हजारों बीज में से मान लो कि 100 पेड़ नए उगे, वो 100 पेड़ में से दूसरे 10,000 पेड़ होंगे। तो इस तरह से अगर मेरे दिमाग में एक कामना है तो मेरा जन्म होगा, वो जन्म में मेरी नई नई कामनाएं होगी, फिर मेरा जन्म आगे चलते रहेगा। ये अपनी हिंदू धर्म की मान्यता है। होम विद गॉड सेज, आई एम सॉरी अशोक भाई, बट दैट बुक सेज on the death of everyone, that soul will meet God, and God will ask him, what do you want to do? You want to go back to the same life? You want to go to another galaxy? You want to live another life? Or you want to take rest? If you want to take rest, it means you have moksha. Whatever you want shall be done. क्योंकि अभी डेथ के बाद में यू आर नॉट जीवात्मा, यू आर आत्मा, और आत्मा को कोई बंधन नहीं है। तो दिस बस इज। इसीलिए सर मैं हमेशा कहता हूँ कि कन्वर्सेशन ऑफ गॉड यहीं से अलग होता है, क्योंकि कठोपनिषद एब्सोल्युटली क्लियर है। व्हेन वी रीड हाँ। कठोपनिषद, इवन भगवत गीता के 8वें चैप्टर में भी आएगा, व्हेन हाँ। अर्जुना विल आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन, मैं इतनी मेहनत करूं, कर्म करूं, हम्म, और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे भगवान कृष्ण कहेंगे कि तुम वहां से कंटिन्यू करोगे जहां तुम छोड़ोगे। बराबर। यहाँ पे और इवन कठोपनिषद में
जब यमराज जी नचिकेत को समझाते हैं तो ये भी नचिकेता भी यही प्रश्न करते हैं, हम्म। तो कि मैं जो एक व्यक्ति जो धर्म के साथ जीता है और एक व्यक्ति जो अधर्म के साथ जीता है, बराबर। और ये यही द सेम टर्म आई हैव यूज्ड अर्लियर, कि नचिकेता जब कहता है कि देन डेथ कैन नॉट बी एन इक्विलाइजर, अगर वो व्यक्ति भगवान उससे उस वक्त वो दोनों की मृत्यु हो जाती है जो हम्म। एक अच्छा काम करता है, और एक वो व्यक्ति है जो हमेशा गलत का किया है, चोरी की है, करप्शन किया है, दूसरों को लूटा है, मारा है, काटा है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अगर वो दोनों भगवान के पास जाते हैं, जैसे उस कन्वर्सेशन गॉड का आपने रेफरेंस दिया, और भगवान कहते हैं कि बताओ तुमको क्या करना है, आराम करना है, तो दोनों को बोलते हैं आराम कर लो, तो वो हमारे शास्त्र मेरे हिसाब से नहीं कहते। और यही उस दिन वाले जो आपके ईमेल में मैंने यही प्रश्न किया था कि हमारे किसी भी शास्त्र में ऐसा रेफरेंस हो सर, तो मैं मतलब विद ऑल ह्यूमिलिटी आई विल एक्सेप्ट व्हाट कन्वर्सेशन ऑफ गॉड से, बिकॉज जहां तक मैं कठोपनिषद स्पेसिफिकली सेज, भगवत गीता स्पेसिफिकली सेज, दिस इज माय स्मॉल Now, पॉइंट। I fully agree with you, Ashok Bhai. If we talk of Hindu Shastra, okay, मैंने भी जहाँ तक पढ़ा है, आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मगर कहीं भी कर्म के सिद्धांत को ओवरराइड करने की बात ही नहीं है। ओके। मगर पूरा हिंदू धर्म कहता है ये समाज इल्यूजन है, संसार इल्यूजन है, संसार नाटक है। ओके। तो आप और मैं जो कर्म कर रहे हैं और अफगान के टेररिस्ट जो भी कर्म कर रहे हैं, दोनों नाटक है। अभी मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो भी कर रहा है नाटक है। ठीक है। अच्छा, नाटक में पर्दा गिर गया, बाद में क्या? सर मैं वही कह रहा हूँ, जो व्यक्ति समझता है उसको, अब जैसे आप टर्म यूज करते हैं नाटक, मैं हाँ, कहता हूँ वो सत्य नहीं है, रियलिटी नहीं है उसकी। बराबर बराबर। अब मैं जो कोई भी कार्य कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, मैं उस नाटक में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और सत्य नहीं जानता कि ये नाटक है। हम्म। अब टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं दुर्योधन का रोल कर रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि ये नाटक है, ठीक है, पर्दा गिर गया, तो मैं दुर्योधन की तरह वर्तन चालू रखूंगा, सिंपल, क्योंकि मैं नाटक गिरने के बाद मुझे पता ही नहीं है ये नाटक था। अब इसको हम इमेजिन भी कर रहे सब जने कि मैं नहीं जानता मैं ये नाटक का पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं नहीं जानता, पर्दा गिर गया, मेरा समाज के साथ व्यवहार क्या होगा? दुर्योधन जैसा ही होगा, क्योंकि मैं समझ जानता ही में नहीं नहीं था कि रहेगा, मैं नाटक कर रहा था। सब पर्दा गिर गया। एनीवे, व्हाट आई टेल यू, my main purpose of raising this issue, I know that myself and Ashok Bhai have difference of opinion. Okay. My main point here is, please think independently. Please, for God's sake, think independently. Don't be tied down by anything or anyone's opinion. हम्म। अच्छा, हम लोग गीता क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत कुछ पता नहीं है, तो हम गीता पढ़ के समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मगर मुझे बराबर याद है, मैं जब कॉलेज में भी था, तो आई हैव डिसएग्रीड विथ माय प्रोफेसर्स एंड आई हैव आर्ग्यूड, एंड देयर वर गुड प्रोफेसर्स। मैं सिडनाम कॉलेज में था, तो दे एनकरेज डिस्कशन, दे एनकरेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। प्रोफेसर अभ्यंकर थे, जो हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेते थे, तो ही एनकरेज डिस्कशन। तो ऐसे आप प्रोफेसर मुझे याद है, जो एनकरेज नहीं करते थे वो मुझे याद भी नहीं है। मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ये एक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर अपने दिमाग को इम्प्रिजन मत करो। ओपन अप द माइंड। जो अच्छा है, जहां अच्छा है, जो महात्मा गांधी जी की ये पॉलिसी थी कि जो जहां भी अच्छा मिले उसे अडॉप्ट करना। अच्छा, ये भी एक सिद्धांत है विच इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन। उसके बाद में आपको जो जो अच्छा लगे करो। हाँ। आप पिंजरे में रहो, पिंजरे के बाहर रहो, या तो उसको पिंजरा ही मत समझो, बिल्कुल, आपका चॉइस है। बिल्कुल। और जैसे हम लक्ष्मण में पहले भी कहा था कि हाँ। ये जैसे जितने भी हम दर्शन की बात करें ना, तो ये एक तरीके से जैसे वो शंकराचार्य जी ने भी कहा, एक हाँ। दृष्टिकोण है, और मैंने यही कहा दृष्टिकोण। था कि ये दृष्टिकोण हमारे इवोल्यूशन का है। हम जिस लेवल पे इवॉल्व होते हैं, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही होता है। हम ये हमारा अनुभव भी है कि बराबर। जब हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल देखे, जब हम छोटे थे,
या कुछ लोग ऐसे हैं, अपना उस वे एक एग्जांपल ये, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनका एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, हम्म। उनका दृष्टिकोण हर बात में कैसा है और हमारा कैसा है। नहीं अशोक भाई, आपने हाँ। आज ही एक छोटा सा वीडियो भेजा यस। जिसमें आपने इवोल्यूशन लिखा है, वही यस। समझाइए ना सब। बस, तो मैं यही मतलब ये हर, बिकॉज एवरीथिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इवॉल्व्स विद टाइम। फिर इसी में फिर इतने सारे भगवान क्यों हैं, वो भी एक स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है। फिर हम सांख्य गिने, अद्वैत गिने, द्वैत गिने, वो भी एक स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है। और जैसे रश्मि भाई ने कहा कि एवरीबडी इज फ्री टू एक्ट, बिकॉज हमारे हिंदू धर्म की सबसे खूबसूरती यही है हम्म। कि आपको जो अच्छा लगे वो बस। आप करिए। अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि आप एट द एंड ऑफ द माइंड, एट द एंड ऑफ द डे, डू वी हैव दैट पीसफुल माइंड व्हिच करेक्ट। कैन रिफ्लेक्ट अपॉन द हायर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर हमारे में वो पहले से ही ऑलरेडी क्लस्टर्ड होगा ये सब, या हम्म। क्लटर्ड होगा, तो हम वो सब नहीं कर पाएंगे। ये एक चीज। और जसमिन भाई, जस्ट हम ना जानते ही कि इस बात पे हम डिसएग्री करते हैं, और यही चीज मैंने मेल में लिखा था। मैं यही चीज सबके सामने एक और कहूंगा कि जैसे हम ब्रह्म को पूर्ण मानते हैं, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन जब जब भी हम कहेंगे ना कि हम आत्मा कोई रूप इच्छा करती है या धारण कर, इसलिए वो रूप धारण करना चाहती है, तो इस प्रेमाइसिस पे भी ये स्टेटमेंट गलत बैठता है, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं चाह सकती, वो सिर्फ इनेबल करती है जो आप चाहते हो। यस। बस इतनी छोटी सी। नहीं नहीं, बराबर है। सो आई थिंक देर इज फूड फॉर थॉट। हाँ। इसको आगे थॉट करना है, आगे थॉट करो। और 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 पढ़िए, और पढ़िए, और एक्चुअली पढ़ने से थोड़ा कुछ नॉलेज मिलता है एक्चुअली। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शास्त्र आपके पास है, इट इज लाइक ए मैप। वो नक्शा है। हाँ, आपको यहाँ से हिमालय जाना है, कैसे जाओगे भैया? अच्छा, मेरे पास गाइड मैप है। मेरे इतनी जर्नी टैक्सी से होगी, उसके बाद में प्लेन से होगी, उसके बाद में फिर टैक्सी से होगी। वो पूरा रास्ता मुझे बताया, मगर चलना मुझे है, मुसाफरी मुझे करनी है। मतलब कि मुझे वो जीवन में जीना है। अभी मैं वेदांत में मानूं या सांख्य में मानूं या गीता में मानूं या ना मानूं, मैं कैसे जीवन जीता हूं, उसी के ऊपर मेरा, वही मेरा कर्म है। अगर अशोक भाई की बात माने तो उसी से मेरा इवोल्यूशन होगा, उसी से आगे प्रोग्रेस करेंगे, या तो नहीं करेंगे प्रोग्रेस। तो जीवन जीना वही महत्व की बात है। हम्म। सर क्या होता है कि कभी कभी बहुत डिटेल में चले जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसके अंदर। हाँ सो हाँ। इसलिए लोग बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। तो लोग कम जानते हैं वो ज्यादा सुखी रहते हैं, और बहुत ज्यादा अंदर जाने पे और उनके लोगों के पास रहने पे भी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसके अंदर। तो अब मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो आपके लिए और अशोक भाई के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए है सर, बिल्कुल। आप खाली सुनिए सर, बिल्कुल उसके है ना। सो मगर वो एक चीज बताऊं, एक लेवल है इग्नोरेंस का, दूसरा लेवल है मिडल लेवल, जहां कंफ्यूजन ज्यादा है, क्लैरिटी कम है। हाँ बराबर, तो वो लेवल पे कंफ्यूजन होता है। हाँ फिर जब थर्ड लेवल पर इंसान पहुंचता है, हाँ, एक्चुअली मैंने मैंने जो चैरिटी काम किए, बहुत सारे गांवों में, जंगलों में काम किए, मैंने देखे हैं, मैं मिला हूं उनके लोगों के साथ में। जो कुछ कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने एसएससी भी पास नहीं किया है, कोई फोर्थ स्टैंडर्ड पढ़ा है, कोई पांच स्टैंडर्ड पढ़ा है, तो कोई भी शास्त्र पढ़ने की तो बात ही नहीं है, मगर उनका जीवन इतना अच्छा है, इतना आदर्श है कि अपने को लगता है हाँ बराबर, ये आदमी कर्म कर रहा है, वो किसी के उपदेश से कर रहा है कि अपनी दृष्टि से, अपने स्वभाव से कर रहा है, अपने स्वभाव से, तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो अपने मार्ग पर आगे चले जाता है। रश्मि भाई, एक एक्चुअली छोटी सी तो, बात। हाँ जी। आपने जस्ट खाली एक जस्ट मतलब मैं अपना खाली इसमें छोटा सा एक दृष्टिकोण, आपने जो कहा जैसे भगवान ने भगवत गीता कही और उसमें जो अलग अलग दर्शन थे उसको सबको कवर किया। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि भगवान ने भगवत गीता कही जो वो जानते थे, जैसे वो मानते थे। अलग अलग टीकाकारों ने उस पे व्याख्यान किया जिस जिस दर्शन को वो मानते थे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। अगर हम इसको एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल दे, सांख्य की बात करेंगे, विशिष्ट अद्वैत की बात करेंगे, द्वैत की बात करेंगे, अद्वैत की बात करेंगे, अगर ये सब करेंगे तो भगवत गीता तो एक ही है। ठीक है। तो जहां पर भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा तो और कुछ है ही नहीं, तुम मुझे पूजो,
तो वही जो भक्ति भाव वाला जो द्वैत देखता है, वो उनको भगवान ईश्वर क्रिएटर देखता है, कृष्णा एज अ पर्सनालिटी देखता है, और बाकी को अपने आप को भक्त देखता है। सेम वर्स, इसी वर्ष को अद्वैती कैसे देखता है कि जब भगवान अपने आप की व्याख्यान देते हैं कि मेरे अलावा तो और कुछ है ही नहीं, तो वो इस पूरे संसार की बात कर रहे हैं, एज अ होल इस ब्रह्मन की बात कर रहे हैं। और जहां पे जब विशिष्ट अद्वैत वाला होगा, वो इसको इसकी व्याख्यान इस तरीके से की होगी। समझे, स्वामी मुक्तानंद जी के आप कमेंट्री पढ़ेंगे, आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत आ रहे हैं, तो वो विशिष्ट अद्वैत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो वो जब इस वो कहेंगे कि वो तो पूर्ण है भगवान, और मैं उनका हिस्सा हूं। तो जब वो कृष्ण की बात करेंगे, तो भगवान भगवान ने तो वही शब्द यूज किए, लेकिन उसकी जो व्याख्यान करने वाले थे, जिस जिस दर्शन को वो समझते थे, मानते थे, उस तरीके से उसकी फिर टीका लिखी गई। तो ये मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल गो टू द 17th श्लोक ऑफ 5th चैप्टर ऑफ गीता, स्वामी राम सुखदास जी। अच्छा, ये 17th श्लोक में कहते हैं कि हम मन बुद्धि दोनों को अलग अलग एक शक्तियां मानते हैं। तो पहले कहते हैं जिसका मन पूरी तरह से ईश्वर में लगा है, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से ईश्वर में लगी है, और जिसकी स्थिति परमात्मा में ही है। हाँ, उसको गुलाब जामुन के विचार नहीं आता है, कश्मीर घूमने को जाने का विचार नहीं आता है, कोई विचार नहीं आता है। वो सदा परमात्मा में उसकी दृष्टि स्थिर है। अच्छा, आगे ये श्लोक में नहीं मगर स्वामी राम सुखदास जी ने आगे क्लेरिफिकेशन किया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कि गृहस्थ के लिए उसको अपना काम तो करना ही है। समझो, आपकी माता जी है, आपकी पत्नी है, वो घर में रसोई तो करेगी, आप ऑफिस में जाओगे, अपना काम करोगे, मगर जब भी आप अपने क्लाइंट को एडवाइस देते हो, या तो समझो आप ट्रेडर हो, कुछ माल बेच रहे हो, तभी आपको अपना एक क्लाइंट या कस्टमर में भगवान दिखता है। जब उसमें भगवान दिखता है तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते हो, आप उसके लाभ में ही बात करोगे। अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने हर एक क्लाइंट को भगवान समझता है, और जब इनकम टैक्स ऑफिस में जाके क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको इनकम टैक्स ऑफिसर में भी भगवान दिखता है। वो झूठ बोलेगा नहीं, झूठ सलाह नहीं देगा, और वो ऑनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह से बाहर आएगा। ये जीवन मेरे हिसाब से ये 17th श्लोक कह रहा है कि आपकी स्थिति सतत ईश्वर में ही है, और कुछ भी नहीं है। मतलब इसका सतत उसी में परमात्मा में स्थिति है, उसका मतलब नहीं कि आप दीक्षा लेके एक बाजू बैठ गए या जंगल में जाके बैठ गए पलाठी मार के और फक्त भगवान 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 कर रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। परमात्मा परायण साधक, मतलब वो अगेन सब अलग अलग शब्द यूज किए हैं। एक ही कंसेप्ट है कि आपका मन वचन कर्म, आपका बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सभी कुछ ईश्वर में लगा हुआ है, उसे ज्ञान अपने आप मिलता है। और वो ज्ञान से, ज्ञान को आगे भी किधर लिखा है, मैं एग्जैक्ट साइट नहीं कर सकता हूं। समझो किसी के पास है, ये मैं गीता के आधारित ही कहता हूं, किसी ने अगले 1000 जन्म में बेहिसाब पाप किए हैं, कोई इन्फिनाइट पाप है, ठीक है, मगर किसी कारण से उसे ये भव में ज्ञान हो गया। तो ज्ञान तो दियासली जैसा है। आपके पास घास की गंजी होवे, गोडाउन के गोडाउन घास से भरे हैं, एक दिवासली लगाई और सब गोडाउन जल जाएंगे। इसी तरह से आपको जब ज्ञान हो गया, तो आपके सब पाप खत्म हो जाते। ज्ञान मिलने के बाद में कर्म का लो आपको कुछ करने करेगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अ, अ, ब्रह्म ज्ञानी भवेत ब्रह्म। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ज्ञान मतलब यहाँ ये नहीं कि मैं चौपड़ी में पढ़ लिया, पुस्तक में पढ़ लिया, ये नहीं, रियलाइजेशन जिसको हो गया, वो जिसको रियलाइजेशन हुआ वो खुद ब्रह्म बन गया। फिर पाप क्या पुण्य क्या, सब सब कुछ एक बाजू।
और एक बार उसके सब पाप खत्म हो गए तो उसको पुनर्जन्म लेना नहीं है, मतलब कि वो मोक्ष के प्राप्त हो गया। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें ये श्लोक में और कोई चर्चा की मेरे ख्याल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जरूरत भी नहीं है। फिर भी वी मस्ट से इफ देर इज एनीबडी हु वांट्स टू कमेंट और डिसएग्री, वी कैन ओपन द डिस्कशन ऑन 17th श्लोक। सर इसका नहीं मूल सर। मतलब यही हुआ, जो इससे पहले हम आधे घंटे से डिस्कस कर रहे थे ना सर डिटेल में, हम्म। सेक्शन, रूल्स, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, है हाँ ना, उसकी बजाय मोटा मोटी यही है सर कि हाँ। ये जो कुछ है वो ब्रह्मन है, जो कुछ है ईश्वर है। अब आप उसको ईश्वर की माया बोल दो, ये बोल दो, वो बोल कुछ दो, भी बोलो, और हाँ। आप जो कर रहे हो वो ईश्वर को ध्यान में रख के कर रहे हो, और फिर लास्ट में आप उन्हीं को समर्पित कर रहे हो, तो आप वो कर्मों से बंद भी नहीं रहे हो। तो फिर वो एक तरीके से वो एकदम तादाद में एकदम सेट हो जाता है उसके अंदर। बराबर है तो मैं तो एकदम। ये समझाऊं, जिसको वो श्री हाँ। कृष्णम समर्पण जो जान्ना जी ने उस दिन कहा कृष्णार्पण था। शब्द जो है, हाँ। बराबर। तो मैंने मेरे जिंदगी के सभी कर्म कर्म कृष्ण भगवान को हाँ समर्पित कर दिए। इसके हाँ ऊपर भी मैंने पूरा ऐसे पढ़ा है। हाँ। आपने जो चैरिटी की, जो अच्छे काम किए, वो कृष्ण भगवान को समर्पण की। हम्म। हम्म। समझो मैंने जाके खून किया फिर बोला मैंने ये कृष्ण भगवान को समर्पण कर दिया, ऐसे नहीं होता है, नहीं क्योंकि ये नहीं। तर्क की, लॉजिक की, दलील की बात नहीं है। सीधी सादी समझने की बात है कि आपका जीवन ही कृष्णार्पण हो गया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। और बाकी जो ड्रामा वाली बात है ना सर, जो बीच में रह गई, वो ये पूरा ड्रामा जो प्रेमानंद जी का आप जिक्र करते हैं, और बीच में आप अपनी भी आपस में सब ग्रुप में बहुत बार बातें हुई है, तो सर हम्म। ये ड्रामा का ही पार्ट है। जब तक वो ड्रामा कंप्लीट नहीं होता ना, तो जैसे फिल्म कंप्लीट नहीं होती, एक वेब सीरीज कंप्लीट नहीं होती, वो चलता रहता है। तो जैसे इसको आप यूं समझ लो, एक जन्म चलता रहता है, 10 जन्म चलते रहते हैं, 100 जन्म चलते रहते हैं, तो हमें बड़े दिखते हैं कि 100 जन्म पता नहीं कितने होते होंगे, लेकिन वो ब्रह्मन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है वो 100 जन्म भी। तो वो बराबर है। जब तक वो अकाउंट पूरा जीरो नहीं होता है ना सर, हम्म। जो अभी तक जो समझ पाए हैं, अब वो जीरो कैसे होता है, हम करते हैं, कोई और करता है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, तो अशोक भाई हमें डांट देंगे, और या आप कुछ हमें अलग समझाएंगे। मैं तो, हम जो जितना लूजली समझे कि जब तक अकाउंट जीरो नहीं होता है तब तक वो ड्रामा कंप्लीट नहीं होता है। वो जीरो करने का रास्ता है ज्ञान। हाँ। और वो ज्ञान का मतलब है कि मैं नहीं, जो कुछ है सो तू ही है, बस बिल्कुल। और बराबर है फिर वो बस एकदम। उसी को देखना, उसी को स्वीकार करना, और जो आपने कहा ना सामने वाले में ईश्वर को देखना और उसका समझ के करना, तो उसमें अपने ऊपर अकाउंट में कुछ आता ही नहीं है, न क्रेडिट आती है न डेबिट आती है उसमें। बराबर है। देखो अभी अशोक जी, सीधे सीधे बता दिया, रश्विन भाई एग्री हो गए बिल्कुल। आप इतने प्रोविजो के साथ बताते हो तो एग्री नहीं होते। See, fundamentally, I agree with Gita. Okay. So there is no question. Otherwise, I would not be studying Gita, right? नहीं नहीं I सर। agree with Gita. But my point is, there are additional views also. या Okay. And that Conversation with God is a beautiful series of books which gives us additional information. But Conversation with God का भी मेन थीम तो यही है, अद्वैत वेदांत। वो अद्वैत शब्द यूज नहीं करता है, वेदांत शब्द यूज नहीं करता है वो, मगर ये कहता है तुम अभी, वो गॉड शब्द यूज करता है, तुम अभी इसी वक्त ईश्वर हो। हम्म। जी। तो फिर फर्क क्या रहा उसमें? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि और तुम अभी ईश्वर हो, कोई फर्क तो है ही नहीं। खाली शब्द यूज किए वो अलग है। अच्छा, अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, 50-60 साल पहले एक बुक निकली थी, यू विल सी इट इफ यू बिलीव इट। हाँ याद है? हाँ प्रदीप भाई इसका जिक्र करते थे। हाँ। स्टीवन कॉवी नॉर्म। की है सर वो तो बुक। हाँ जी। नहीं, स्टीवन कॉवी की नहीं है ये, नॉर्मन अपना डायर, वाइन डेयर की है ये। हाँ, वाइन डायर के। हाँ हाँ। अपन ने प्रोग्राम भी रखा था बीसीएस में एक बार, एक है ना अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मीर हाँ। भाई। नहीं, ये इसके पर तो मुझे याद नहीं है, बट ये प्रदीप भाई, as Rashwin bhai said, was very and there were two books which he used to very highly recommend. One was this, and the other one is Don't Say Yes if हम्म। you want to say no. Yeah, ओके, दोनों या वेन डायर। बराबर बराबर। तो But मतलब, Rashwin bhai, हाँ जी। when we just before we touch on this subject, I यस। think there were 2 points, which one was by Ashok bhai and one was by you. हम्म। Ashok bhai just said different interpretations. There is one, what we call as the eternal truth. But as people read,
by their own experiences and believe they are given a different context and meaning. Now, even if you look at it in a very normal life or common parlance, let's take just one statement that मैं वहां हूं. Now, it's a main statement of fact कि मैं वहां हूं. Somebody can say मैं वहां हूं, मैं वहां हूं, मैं वहां हूं. Now, there can be completely different contexts of interpreting the one statement. So it is very possible that this, and not all of them could be true. It is not that there is one which is in contradiction. Of people by their own experiences would have interpreted it. So that was one. And secondly, as you said about एक घासनी गंजी खाली एक दिवासળી थी तो એમાં તો I remember having read some uh, text like this, that one chingari, ekajado chingari, and that can हाँ. really burn, right, entire lives of sins or our karmas. Yes. એટલે one spark is just good enough. Correct, correct, correct. Yes. Thank you, Just Mir bhai. Rashman, Thank you. Rashman bhai, just to Yes. Meher bhai ji ki do, just to add to it, कि Meher bhai fully agree. We have already discussed कि whenever it comes to perceptions, ये होना ही है कि सबका अलग अलग परसेप्शन होगा. जो एक व्यक्ति कहेगा उसका मतलब दूसरा निकलेगा और वो दूसरा व्यक्ति उस तरीके से देखेगा. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो बिल्कुल सही है. लेकिन जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं सही है. नहीं, वो मैं नहीं कहना चाहता. तो प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अद्वैत वेदांत को एक्सपाउंड किया आदि शंकराचार्य ने, जो उसको प्रोपोगेट किया. उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी. हम जब जब रेफरेंस में बात करते हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी कि वन दैट इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज ओनली ट्रूथ. उसके अलावा बाकी कोई सत्य नहीं है. तो जैसे हम इनकम टैक्स एक्ट का जैसे वो करते हैं कि डेफिनेशन में ये लिखा है, और उसको जब समझने की कोशिश करते हैं, वी रेफर टू द डेफिनेशन. तो जब हम कहते हैं ना सत्य एक ही है, तो वो ब्रह्म की बात हो रही है, परसेप्शन की बात नहीं हो रही. जब उन्होंने कहा कि सत्य एक है, तो मतलब व्हेनेवर ऐसे सत्य एक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट है और वो एक ही है. नहीं, जब मैं कहूंगा सत्य एक है, मतलब मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं. सो दैट उस रेफरेंस में सिर्फ ये बात थी. और एक जैसे अभी आपने कुछ रेफरेंस दिया, मुझे पता नहीं वो किस रेफरेंस में था, कि इफ यू सी यू बिलीव इट. हमारे वेदांत में तो यहां तक भी कहते हैं, इफ यू एक्सपीरियंस इट, even that it is not correct, even then it is not correct. Even if you experience it, that may not be correct. खाली सीइंग की तो बात ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा स्वप्न में हमारा अनुभव था. In the dream we experienced everything. Yes. But even that is not true. Seeing तो बहुत दूर हो गया. जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, इस पॉइंट में रेफरेंस में आया था, तो मैंने कहा जस्ट शेयर विद द ग्रुप कि हम तो ऐसा कहते हैं कि जो जरूरी नहीं है जो हम अनुभव करते हैं वो भी सत्य है. Yes. मीर भाई, लेस इज मोर. तो फिर सत्य क्या है? किसी ने पूछा सत्य क्या है, यही इससे पहले वाले उसने सेंटेंस में कहा था, वन दैट इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज सत्य. समय, स्थल और वस्तु, ये तीनों के सबसे बड़ी लिमिटेशन चीज. है. हम आज 10 अक्टूबर को यहाँ बैठे हैं. आज 9 अक्टूबर नहीं है, 11 अक्टूबर नहीं है. तो इस तरह से समय को हमने काट दिया. 10 अक्टूबर वो एक चीज है. अभी समझो हम में से मेजोरिटी मुंबई में बैठे हैं. ओके. तो अभी मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ, मैं अमेरिका में नहीं हूँ. तो ये मेरा ये स्थल नक्की होगा, मैं इधर ही हूँ. और मैं एक इंसान हूँ, मैं टेबल नहीं हूँ, कुर्सी नहीं हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ. ये वस्तु की बात हो गई. तो ये स्थल, समय और वस्तु, ये तीन अलग अलग लिमिटेशंस हैं. दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ब्रह्मन appears in the form of infinite objects, forever it keeps appearing. तो समय वगैरह सब उसको अलग 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 तरह से वो appear होते हैं या मैनिफेस्ट होते हैं. मगर ब्रह्मन एज ए होल
is not divided, not limited by anything. तो अपरिछिन्न वो शास्त्र का शब्द है। वस्तु, काल और स्थल उससे देश, अपरिछिन्न है, वस्तु काल वही देश, ब्रह्म। हाँ जी। वस्तु काल देश। हाँ, वस्तु काल देश उससे अपरिछिन्न है। So when you go out of the gravity area of Earth, when हम्म તમે આકાશમાં હો, हम्म so then you are beyond this because all these three things are limited by the gravity and place where you exist on the Earth. But does it mean that if you move around in the sky beyond the gravity, have you achieved Brahma or the outside is Brahma? Mihir bhai, I would say that at what distance will you say that you are outside gravity? 300 kilometer, 10,000 kilometer. Moon is tied down to Earth with gravity. Are Hmm, we talking of going beyond moon? Earth is tied to sun because of gravity. hmm. Are we talking of a distance of more than going between the sun and Earth? I think that analogy is not proper. Not correct. Hmm. If I, Rajshri, if I can explain this, not Please. limited by time Yes. space. इस पे मेरे पे तीन चीजें, जैसे हमने पहले कहा, नॉट लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रूथ। एंड वी कॉल अबाउट ट्रूथ, वी से दिस इज ब्रह्मन। अब ये ब्रह्मन को समझने के लिए उनके फैक्टर्स दिए गए कि नॉट लिमिटेड बाय टाइम। टाइम इन द सेंस कि हम आज हैं, दिस बॉडी, मेरा अशोक कटारिया इज टुडे, Yeah. फ्यू इयर्स डाउन द लाइन दिस मे नॉट बी देयर। तो ये ठीक है। तो अब मैं उस ब्रह्मन की डेफिनेशन में, दिस बॉडी डज नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मन, बिकॉज आज है, कल नहीं रहेगी। Hmm. तो और ब्रह्मन क्या हुआ, हाँ, सत्य की बात Understood. करेंगे, कल था, आज है, और कल भी रहेगा, हमेशा भी रहेगा। और Understood. ऐसा कोई समय ही नहीं था जब वो नहीं था। हाँ. एक एक ऐसा बहुत सुंदर भी गाना के है, बीच में शायद किसी ने शेयर भी किया था, ऐसा कोई वक्त नहीं जब तू नहीं था, तू नहीं था, ऐसा एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग। इस तरीके से एक सॉन्ग भी है। दिस इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम। एंड देन यू से, वो ग्रेविटी की बात है, नॉट लिमिटेड बाय स्पेस। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर वो नहीं है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड स्पेस, नॉट जस्ट फिजिकल स्पेस, कि जहां स्पेस क्रिएट नहीं हुई वहां भी वही है। बिकॉज वी कैनॉट इमेजिन दैट, कि वो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारे को शास्त्र इस तरीके से बताते हैं कि जरूरी नहीं है ना ये संसार हो। एक समय ऐसा भी था जब संसार नहीं था, तो स्पेस नहीं था, तो स्पेस, और हम कहते हैं कि स्पेस एक्सपांड भी हो रही है, साइंस ये कहता है स्पेस एक्सपांड हो रही है। तो स्पेस कहाँ एक्सपांड हो रही है, किस में एक्सपांड हो रही है? तो पहले से कोई स्पेस थी वहां पर? Very, very nice. There was एंड this. लास्ट पॉइंट जस्ट टू खाली हाँ, कंप्लीट। हाँ, सो नॉट लिमिटेड बाय टाइम, not limited by please. space, not limited by objects. Now what does it mean? This is a pen, ठीक है, and this is a spectacle. This spectacle is not a pen, so this pen is limited. This spectacle is only a spectacle, this cannot be pen, so this is limited by object, this is limited by object. Brahman is there, अगर वो सब जगह है, हर समय है, तो वो ऑब्जेक्ट से लिमिट नहीं हो सकता। सो दिस इज वन, जो जो ऐसी चीज है जिसको मैं ब्रह्मन कहता हूं, या मैं अपने दृष्टिकोण से आत्मा कहता हूं, वो इन तीनों डेफिनेशंस में फिट होती है, वही सत्य है। उसके अलावा जो भी मैं अपनी इंद्रियों से अनुभव करता हूं, विच वॉट एवर आई एक्सपीरियंस थ्रू माई सेंसेस इज माया, इज माया। एंड दैट इज, अगर इसको, जैसे हम बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि वो मैजिक एंड मैजिशियन, मैजिक यू सी इट एज अ ब्रह्मन, ठीक है, मैजिक, मैजिशियन इज अ ब्रह्मन। मैजिशियन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, ही कैन डू इट, सो मैजिक इज हिज पावर। जब मैं बलून में से कबूतर निकलता देखूं, दैट इज हिज पावर। सो वेन एवर आई सी दैट मैजिक, आई रिमेंबर द मैजिशियन हु इज डूइंग इट। ऐसे देखा जाए तो मैजिशियन
and magic are different because magic is power of the magician. In the same way, Maya is the power of that supreme Brahman. एक एक जो भारत एक खोज था उसके अंदर ये ऋग्वेद की यूज टू स्टार्ट विद दैट कि सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, न आकाश भी नहीं, so there is nothing but just Brahma. Anyway, I think that very well explained, understood. Well, Thank you. well, that's inspired from an Upanishad only. कि ये जो song जिस तरीके से Upanishad only, जब yeah. किसी उपनिषद, हाँ, और ये मैं देखूंगा कि बिकॉज जो ये मैं दूसरा सॉन्ग कह रहा हूँ रिसेंट सॉन्ग है, एंड वो हिंदुइज्म वाले पे पिक्चराइजेशन नहीं है, इट्स अ मुस्लिम वो बैकग्राउंड में सॉन्ग है, सो वेरी ब्यूटीफुल. Sufi. आई विल सी इफ आई कैन फाइंड इट आउट. Thank you, Ashok bhai. ओके. सो अभी हमने जो डिस्कस किया ये स्वामी राम सुखदास जी की कमेंट्री है. उसमें एटलीस्ट मेरे पास गुजराती कमेंट्री है. उसमें पेज 368 के ऊपर फिर से कहा है कि परमात्मा हरेक स्थल, काल, वस्तु और परिस्थिति सभी में है. तो परमात्मा मतलब ब्रह्मन का तो कहीं से आना कहीं जाना ऐसा तो संभव ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है. ओके. तो अभी आगे चलते हैं 18th श्लोक. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है और आई नो व्हाई अशोक भाई लाइक्स इट. ओके. ये कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी पुरुष भी है जिसको विद्या भी है, विनय भी है, वो ब्राह्मण भी है, मगर जो सही ज्ञानी है वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में सब जगह पे परमात्मा को देखता है. हार्ड हिटिंग श्लोक है, एकदम हार्ड हिटिंग. और जो अपने देश में पूरी कास्ट सिस्टम हुई उसके रूट के ऊपर वो तलवार मार रहा है कि पूरी कास्ट सिस्टम, अगर आप किसका क्या फंक्शन है उसके ऊपर से कास्ट बनाओ बात अलग है, मगर ये स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत डिटेल में ये श्लोक समझाया है कि चांडाल और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है, हाथी, गाय और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है. आप गाय की पूजा करते हो, कुत्ते की पूजा करोगे नहीं. तो स्वामी जी ने कहा है कि ये श्लोक में लास्ट शब्द है समदर्शी. हम्म. तो स्वामी जी समझाते हैं समदर्शी शब्द के ऊपर भाव दो, महत्व दो. क्योंकि समदर्शी मतलब समझो आप जा रहे हो किधर, एक गाय को कुछ लग गया है और एक कुत्ते को भी कुछ लग गया है, तो आप समझो कि दोनों में ईश्वर है, मैं दोनों की सेवा करूंगा, उसको जो भी लग गया है जो भी मेरे से हो सके ड्रेसिंग वगैरह करूंगा. वो करते समय आप उसका तफावत नहीं देखोगे, मगर गाय का दूध पियोगे, कुत्ते का दूध नहीं पियोगे. इस तरह से उन्होंने 4-5 इलस्ट्रेशन दिए हैं कि आप चांडाल में भी ईश्वर तो है ही. उसके लिए तो हमने आगे पहले बात कर ली है, आदि शंकराचार्य को शंकर भगवान ने क्या अनुभव करा दिया. ठीक है. तो वो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमने सब ने वो डिस्कस कर लिया है. शंकर भगवान ने खुद आदि शंकराचार्य को रियलाइजेशन करवा दिया कि वो शंकर भगवान खुद चांडाल के अंदर थे और उनके साथ जो 4 कुत्ते थे वो भी शंकर भगवान का ही मैनिफेस्टेशन थे. तो हम ये कास्टिज्म सिस्टम जो इंडिया में है या तो दूसरे देशों में कलर के ऊपर से देखते हैं, लाइक आज की तारीख में अमेरिका में 4 वर्ण नहीं है, हाँ, मगर वो ब्लैक स्किन वालों को इस तरह से मारते हैं. पुलिस भी दिन दहाड़े कोई कारण के बगैर भी किसको गोली मार दे, वो निग्रो बेचारा मर भी जावे, पुलिस को कुछ नहीं होता है. हाँ, ऐसे हर एक देश में अलग अलग कारण से, कहीं वो धन के कारण, कहीं डिग्री के कारण लोग डिफरेंसेस देखते हैं. तो यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो सभी में हूँ,
मैं सभी में हूं और तू किसी में फर्क मत देख। जो ईशावास्यम इदम सर्वम, वो उपनिषद का श्लोक है। और गीता का भी मैसेज यही है कि समदर्शी लोग हैं, वो सभी में परमात्मा देखते हैं, मगर स्वामी जी कहते हैं समवर्ती नहीं हो सकते हैं। आप बिल्ली को अपने घर में आने दोगे, हाथी को अपने घर में नहीं आने दोगे। आप जब भी अपने पिताजी से मिले तो पिताजी को आप प्रणाम करोगे, पिताजी आपको प्रणाम नहीं करेंगे। तो ये समवर्ती नहीं है, समदर्शी है। अभी अभी मेरा अगेन आज मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब कृष्ण भगवान ने खुद इतना स्पष्ट कहा है, आदि शंकराचार्य जी, वो तो समझो 1400 साल पहले हुए, ये गीता तो 5000 साल पहले लिखी गई है। और अद्वैत वेदांत तो यही कहता है कि हर एक में ईश्वर है। तो ये कास्टिज्म सिस्टम इतनी पॉपुलर कैसे हुई? कहाँ से, किसके आधार पर हुई? कोई शास्त्र में कोई आधार नहीं है कास्टिज्म का। और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि गांधी जी के मैंने पढ़ा है, गांधी जी गए थे इधर अपना पुरी में, जगन्नाथपुरी। हम्म। तो जगन्नाथपुरी आश्रम में उन्होंने कहा कि भाई आप हरिजन को क्यों नहीं आने देते हैं? तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, वो शास्त्रों में मनाही है। गांधी जी ने पूछा, मैंने भी थोड़े शास्त्र पढ़े, आप मुझे बताओ कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण ऊंच है और हरिजन नीच है? वो लोग कुछ बता नहीं सके। हाँ, खाली गप्पे मारते रहे, कुछ भी बता नहीं सके। और गांधी जी चले गए। तो ये उनकी स्पष्ट बुद्धि थी। गांधी जी, ही वॉज द मोस्ट इंडिपेंडेंट मैन। ही gave independence not only from Britishers, but he taught us to have independent thinking, and that is why he respected all the religions equally. मेरा इतना ही कहने का है कि जो अद्वैत वेदांत के ऊपर हम इतना अभ्यास कर रहे हैं, ये जिन्होंने भी कास्टिज्म सिस्टम क्रिएट की, उन्होंने अद्वैत का तो कंप्लीटली चरगाण कर लिया, अद्वैत को भुला ही दिया। अच्छा, अभी मेरे पास एक स्टोरी है, मेरे ख्याल से आप सब ने पढ़ी होगी। एक हिंदुओं में मान्यता है कि आप हरिद्वार में से पानी भरो, वो पानी आप खूब उठा के चलो, रामेश्वरम जाइए, और वो पानी हैदराबाद की पवित्र पानी आप रामेश्वर के दरिया में डालो। उससे बहुत पुण्य मिलता है। संत एकनाथ और उनके मित्रों का ग्रुप था, ब्राह्मणों। हाँ, वो हरिद्वार से वो कावड़ लेके, हम तो पानी भरना मतलब एक बोतल भरेंगे, मगर ये लोगों ने तो कावड़ उठा के, कंधे पर कावड़ रख के, मतलब कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा, वो लेके चलते हरिद्वार से रामेश्वरम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक गधा रास्ते के साइड में पड़ा था। वो तड़फड़ा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, ये संत एकनाथ जी ने देखा। तो वो तो गधे के पास पहुंच गए, उसको पानी पिलाने लगे। अपनी कावड़ जो हरिद्वार से लेके आए थे, कंधे पर उठा के लेके आए थे, वो पानी पिलाने लगे। उनके साथ में जो ब्राह्मण थे वो सब उसकी मस्करी करने लगे। अरे इतना पवित्र पानी, तूने इतनी बड़ी तपस्या करनी है और रामेश्वरम जाके दरिया में डालने के बदले में तू गधे को पिला रहा है। तो संत तो बोलते नहीं है कुछ, वो तो अपना काम करते गए। शायद उन्होंने पूरा पानी गधे को पिला दिया। वो गधा फ्रेश हो गया, उसके जो प्यास लगी थी मिट गई, और खड़ा हो गया। तो संत एकनाथ जी प्रणाम करते हैं गधे को कि हे भगवान, क्योंकि वो तो सब में भगवान देखते हैं, हे भगवान, आपने मेरा दिया हुआ जल स्वीकार किया, आपका बड़ा उपकार है। अभी आगे मैं जो पुस्तक में से ये स्टोरी पढ़ी, वो क्या कहते हैं कि महादेव
स्वर्ग में बैठे महादेव ने कहा, मेरे गले में जहर है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, सतत जलते रहता है मेरा गला। आज मुझे एक नाथ का पानी पी के शांति हुई। हम्म। कितनी सुंदर बात है। हाँ? वो शंकर भगवान जो शैव पंथी है, शंकर भगवान को सब जगह पे मानते हैं। वैष्णव कृष्ण भगवान की बात करते हैं। और वेदांती कहते हैं कि शिव और कृष्ण दोनों में फर्क ही नहीं है। ठीक है। तो शंकर भगवान भी गधे में बसे हुए थे, और वो गधा पानी की प्यास के कारण तड़फड़ा रहा था। तभी एकनाथ जी ने उसे पानी पिला दिया। भगवान को, मुझे ये स्टोरी इतनी अच्छी लगती है, इतने, मैं आगे ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकता हूँ, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। और जो एकता की बात है, अद्वैत की बात है, इसके लिए इस बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन है। सर्व, इन्होंने एक गीता का श्लोक 12th अध्याय में से साइट किया है। सर्वभूत हिते रताहा। भूत मतलब प्राणी। भूत शब्द का यहाँ अर्थ ये होता है जिसने भी जन्म लिया है, सब प्राणी। वो चांडाल है, कुत्ता है, गधा है, कोई भी है। हाँ, वो सबके हित में जिसका दिमाग हमेशा काम कर रहा है, ऐसे साधु। मतलब वो गृहस्थ भी होवे तो उसे साधु ही कहते हैं। अभी पेज 371 पर राम सुखदास जी ने भी यही लिखा है जो गांधी जी ने कहा था। वर्ण में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा कोई भी शास्त्र ने कहीं भी नहीं कहा है। कोई कह भी नहीं सकता है, क्योंकि हर हिंदू धर्म मेरे हिसाब से अद्वैत वेदांत को तो मानता ही है। तो कोई कह नहीं सकता है कि ये ऊपर है और ये नीचे है। यहाँ एक इलस्ट्रेशन मैं देता हूँ। कोई स्त्री है, उसे बहुत कुछ ज्वेलरी चाहिए। तो उसके लिए एक अंगूठी अलग है, ब्रेसलेट अलग है, नेकलेस अलग है। वो सब चीज को अलग अलग देखती है। या तो जो उसने, उसकी मम्मी ने या नानी ने भेंट दी थी, तो वो ज्वेल की उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कीमत है। आज उसके पति या तो वो खुद अपनी कमाई से नया ज्वेलरी ले सकती है, बहुत अच्छी ज्वेलरी ले सकती है, मगर नानी ने प्रेम से दी थी वो ज्वेलरी वो खास संभाल के रखेगी। स्त्री के लिए हर एक दागीना अलग है। सोनी के लिए क्या है? सोनी के लिए वो शेप का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो उसके अंदर सोना है वो ही देखता है। आपकी अंगूठी है, ब्रेसलेट है, नेकलेस है, हर एक ज्वेल कितनी प्योरिटी का है, उसका नेट वजन कितना होता है, बस उसी में उसको इंटरेस्ट है। यही चीज गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप चांडाल को देखो, कुत्ते को देखो, सबके अंदर मैं बसा हुआ हूं। इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण को मत देखो। ब्राह्मण है, साधु है, गृहस्थ है, जो भी है, एक लेबरर है या एक रईस आदमी है, दोनों में भगवान इक्वली बसे हुए हैं। और स्वामी जी ने आगे समझाया है, ये किसी की भी मृत्यु होगी, हर एक को मोक्ष तो मिलेगी। सॉरी, स्वामी जी नहीं कहते होम विद गॉड के ऊपर नहीं जाते, वो तो कर्म के सिद्धांत के ऊपर। मगर अंतिम लक्ष्य, और जब भी वो लक्ष्य प्राप्त होगा, तो चांडाल को भी वही तत्व मिलेगा, कुत्ते को भी वही तत्व मिलेगा, और ब्राह्मण को भी वही तत्व मिलेगा। और आदि शंकराचार्य जो भी को ब्राह्मण ही मिलेगा। ब्राह्मण के ऊपर से किसी को कोई अलग मिलता ही नहीं है। ये एब्सोल्यूट टोटल इक्वालिटी इवन एट द एंड ऑफ द लाइफ, ये इन्होंने खास कहा है। तब जो आपने गोल्ड वाला बताया ना, उसमें कुछ हाँ। फिलोसोफर इस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ जी। जैसे हर एक ऑर्नामेंट्स का जो बेस मटेरियल है वो गोल्ड है। बराबर। तो वो गोल्ड का आप नेकलेस बना लो, आप उसकी ब्रेसलेट बना लो, या आप एंकलेट्स बना लो, कुछ भी बना लो, बट बेसिकली इट इज गोल्ड। करेक्ट। बराबर है। फिर वो गोल्ड
या वो ornament मेरा है या आपका है या तीसरा है या वो अमेरिका में है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगेन द बेस मटेरियल रिमेन द सेम। यस, सो सेम वो ब्रह्मन है एब्सोल्युटली। एक तरीके से, तो वो ब्रह्मन है। और वो ब्रह्मन का रूप अलग अलग हो सकता है। तो किसी को ऐसे प्रैक्टिकल चीज समझाने के लिए उन्होंने गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स का एग्जांपल देते हैं वो, बिल्कुल उसमें। बराबर है। ये गोल्ड का एक अच्छा सा उदाहरण है। दूसरा घड़े का। हाँ, आकाश का। माटी का घड़ा है, माटी का ग्लास है, माटी की बड़ी कोठी है, कुछ भी है, अंत में वो माटी है। और एक और सुंदर इलस्ट्रेशन है कि वो दरिया है, नदी है, बादल है, जल है, कुछ भी है, अंत में वो सब कुछ पानी है, अंत में जल है। आप कोई भी डिफरेंट देखो, दरिया एकदम महान है, बहुत बड़ा है, और आपके हाथ में ग्लास है, ग्लास में पानी है, सब एक ही है। उसको वेव वेव से भी कनेक्ट करते हैं उसको। जो हाँ, ओशियन की जो वेव रहती है, जैसे आप बार बार में बताते हैं कि हाँ, अल्टीमेटली है तो ओशियन ही वो। बराबर है। तो वो नहीं, वेव। अल्टीमेटली ओशियन से भी आगे जाओ, जल ही है, हाँ, सब मतलब कुछ जल ही है। मतलब ओशियन मीन्स मेड ऑफ ये दिस वाटर ओनली, बेसिक एक एक बूंद जो ड्रॉप है। तो जैसे बराबर है। जो वेव्स है वो वेव्स अलग दिखती है, हम्म। बट अंडरलाइन जो प्रॉपर्टी है वो ओशियन है। एग्जैक्टली। तो वो जो वेव फ्लोरिडा की है या मुंबई हाई की है या बॉम्बे की है या बांद्रा की है, इट रिमेन द सेम। तो फिर इसमें ब्राह्मण कोई अलग अलग नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए करेक्ट। ट्रम्प से इतनी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। उसके अंदर ब्राह्मण भी वही है, और उसको नोबेल पीस प्राइज मिला भी नहीं है सर, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। इसी चीज को रश्मि अब क्या, भाई इस जस्ट हमने इसी क्लास चीज बंद को होने का टाइम आ गया ना, इसलिए हम थोड़े अलग मूड में आ गए सर। इस, इंसिडेंटली जो केके जी आपने बात की ना, यही मैसेज मेरे जो डेड कजिन था, जिसके हाँ पर जो बुक लिखी है, हाँ 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 मेरी हाँ आंटी को उसने बोला था कि हाँ दरियाમાં મોજા આવે છે, ઉઠે हाँ છે, શમી જાય છે, અંતે તો પાણીનું પાણી જ છે. हाँ, So this was बराबर। the message also given to her. हाँ, जी। जी मीर भाई। इसी चीज इसी को रश्मि भाई जस्ट नाउ रिकनसाइल्ड। તમારા મામી છે હજી કે નથી? ना ना, ये तो she passed away in 2017. ओके, ओके, ओके। गॉड ब्लेस सर। बट हम सब रश्मि मिले थे सर उनसे, उनकी इनकी हाँ, जो मामी हाँ। से, उनसे बीसीएस में एक प्रोग्राम रखा था तो मीर नहीं, भाई वो लेके मामा आए। को मिले थे. मामा को मा, मिले मा, थे। मामी मामी को, मामी बाय दैट टाइम had passed away. उसी के अच्छा, बाद मामी में तो नहीं आई मुझे थी वो क्या उस टाइम नोटबुक से में? मैसेजेस मिले. हाँ. हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ओके। बराबर, इसी चीज को बराबर। रश्मि भाई इसी चीज को जो हम बात कर रहे थे कि हाँ जी। अच्छा मयूर भाई को कुछ पहले कहना हाँ, सॉरी। मयूर भाई प्लीज। હા રશ્મિભાઈ જસ્ટ વન પોઈન્ટ તમે જે કીધું ને કે અબાઉટ ધ કાસ્ટિઝમ हाँ। નાउ ઇફ યુ લુક એટ અવર એન્શિયન્ટ ઋષિઝ તો વાલ્મીકીના વાઇફ જુઓ કે ઇવન શાંતનુના વાઇફ જુઓ so there was no caste system prevalent in even in that yuga. I think so. No, no. See, Valmiki Rishi, even Hmm, today, if you know, Valmiki community is there. correct. Okay. They are considered to be scheduled caste. Huh? because because That that is, caste is that's what I'm saying, this casteism, see yeah, that was given by over a period of time. More so it was, during the British Raj, it became very I would say formal. I'll लूजली tell you ट्रांसलेटेड. how, see, I will tell you one thing. Hmm, રામ ભગવાનના જમાનામાં bill હતા. રામે સંબુકને કેમ માર્યો? Hmm, કારણ કે એક બ્રાહ્મણે આવીને ફરિયાદ કરી કે સંબુક શૂદ્ર વર્ગનો છે. એક સેકન્ડ, હા. સોરી. સંબુક શૂદ્ર વર્ગનો છે અને છતાં તપસ્યા કરે છે. તપસ્યા ઉપર બ્રાહ્મણોનો જ અધિકાર છે, શૂદ્રોનો અધિકાર નથી. એટલે રામ ભગવાન કે તારી વાત સાચી છે, અને એ ત્યાં ગયા. સંબુક તો શાંતિથી તપસ્યા કરતો હતો, એને તીર મારીને મારી નાખ્યો. ઓકે. એટલે મારું કહેવું એમ છે કે રામાયણના પહેલાના સમયમાં પણ ભારતમાં કાસ્ટિઝમ હતી. ગ્રોસ ઇનજસ્ટિસ બેઝડ ઓન કાસ્ટ વોઝ ધેર ઇવન બિફોર રામાયણ. એટલે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટને બ્લેમ કરીને ફાયદો નથી. આપણો દેશ જ સડેલો છે, અને એ આપણે હા, સ્વીકારીએ તો જ આપણે એને સુધારી શકશું. આપણે જો કોઈને બ્લેમ કરશું તો તમને હું કહું, હું તો આખા ગુજરાતમાં ગામડે ગામડે ફર્યો છું.
ભયંકર ઇનજસ્ટિસ છે આ લોકો ઉપર. આજની તારીખે, હા, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઓફ પાસ્ટ. યુ ફરગેટ અબાઉટ બ્રિટિશર્સ. જો રામાયણમાં આવું હતું અને પેલામાં મહાભારતમાં કેમ એકલવ્યનો અંગૂઠો કાપી નાખ્યો? તો બી નહોતું. પણ સાહેબ આ લોકોનું તમે એકચ્યુઅલી ગવર્મેન્ટ જોબ્સમાં જુઓ ને તો હા, ધ સિચ્યુએશન ઇઝ રિવર્સ. આઈ હેવ મીન્સ બાય એક્સપિરિયન્સ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ મયુર ઇન્કમ કરતા પણ ઇવન ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર. યા સોરી. મયુર જો બે હા. વસ્તુ છે. હું છે ને રશ્મિનભાઈ પહેલા એક વાત કીધેલી. આઈ ઓલવેઝ હેવ સમહાઉ આઈ એમ અ બિલીવર ઓફ ધેટ. રશ્મિનભાઈએ કીધેલું કે આ જે શંભુકનો જે ઇન્સિડન્સ છે ને that is not possible કે ઓરિજિનલ રામાયણમાં હોય. કરેક્ટ, કરેક્ટ, This must be later on added. બરાબર. જ્યારે કાસ્ટિઝમ ઓપરેશનમાં આવી અને બ્રાહ્મણોએ પોતાનું આધિપત્ય સાબિત કરવા માટે છે ને આવા ઇન્સિડન્ટ્સ મૂક્યા હોય કે ભાઈ તમે જો ક્ષુદ્ર હો તો તમે તપસ્યા ન કરી શકો. બરાબર. પણ આના ટ્રેપિંગ્સ જોવા મળે છે કે ઇન્દ્ર હંમેશા અપોઝ કરતા. કોઈ પણ ઋષિ જો તપસ્યા કરીને સ્વર્ગ લેવાની કોશિશ If I can કરે add, તો ઇન્દ્ર હંમેશા અપોઝ કરતા. સર એક મિનિટ, લેટ મી જસ્ટ. sorry, અને sorry. નહીં, અને મયુર બીજો તારો જે પોઈન્ટ જે છે ને, નાઉ ધીસ શિડ્યુલ કાસ્ટ, એ શિડ્યુલ વર્ડ હેઝ ટેકન બર્થ ઓનલી આફ્ટર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. એ બરાબર છે, બરાબર. ઇન્દિરા ગાંધીના કર્યા કાર્ય છે, આપણે બધા ભોગવી રહ્યા છે. બધું શિડ્યુલિંગ કર્યું, શિડ્યુલ કાસ્ટ ડોન્ટ સે કર્યું. ધેટ, ડોન્ટ સે ધેટ, મયુરભાઈ. કારણ કે હા, શુદ્ર વર્ગ, શુદ્ર શબ્દ તો આપણે દેશમાં હજારો વર્ષથી વપરાય છે. નહીં હતો, પણ હમણાં જે શિડ્યુલ કાસ્ટ જે આપણે જે અનુભવ કરી રહ્યા જ ને, એ બધું શિડ્યુલિંગ ને બધું વિચ હેપન્ડ આફ્ટર ધી ઇન્ડિપેન્ડન્સ, મચ આફ્ટર ધી ઇન્ડિપેન્ડન્સ, અને એટ ધ ટાઈમ વેન વી ટ્રાય ટુ બીકેમ સેક્યુલર કન્ટ્રી. એ બરાબર છે, પણ એના ઉપર હું ડિબેટ નહીં કરું. ખાલી શુદ્ર વર્ગ, એમાં 500થી વધારે જાતો છે અને એ 500 જાતોને ફેવર કરવા માટે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં ઇક્વાલિટી કહ્યું છે, પણ એમ કહ્યું છે કે એ વુમન ઇઝ લેસ કેપેબલ દેન મેન, સો યુ કેન ગીવ એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ ટુ એ વુમન. ઓકે, all these scheduled, meaning the Driver. government prepared a list of castes કે these people have been caused great injustice in India, so now government wants to repent. हमने 5,000 साल से गरीबों पर जो अन्याय किया है उसको आज रिवर्सल करना है, तो हम उनको ज्यादा प्रिविलेज देना मांगते हैं. So that is how the word scheduled has come. But Correct. Shudra word is there for thousands of years. पर सर Correct. मैं वही कह रहा हूँ, शूद्र का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो निम्न कैटेगरी का है. मैं इसी से रिलेटेड एक अगर चीज को, पर पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जैसे वो क्ले का बारे में बात हुई, मैं अगर आप 2 मिनट हो तो मैं उस बारे में, क्योंकि हमें इसी संडे को बच्चों को जब हम ब्राह्मण, मेरे यूथ क्लास में वी डिड एन एक्सपेरिमेंट दिस टाइम कि ब्राह्मण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, दैट हम उसको गॉड कैसे अंडरस्टैंड समझने के लिए इजीली अंडरस्टैंड कि गॉड इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, ही इज द कॉज ऑफ ऑल ऑफ ऑल, मतलब बराबर. कॉज ऑफ कॉज इज द कॉज ऑफ कॉज. तो इसीलिए जब हमने वो गोल्ड की बात करें या क्ले की बात करते हैं, तो वो जो 3 रूल्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि देयर आर 3 रूल्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज. फर्स्ट पॉइंट, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज. तो हमने बच्चों को क्ले दिया, क्ले देने के बाद, मतलब यू कौन से 18-19 साल से बच्चे से 30 साल के बच्चे थे, इस संडे की बात कर रहा हूँ, और मैं उनके समरी भी क्लास का मैं किसी ने लिखा है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा. हमने उनको कहा इसमें से आपको जो बनाना है बनाइए. बच्चों ने उसमें से कुछ किसी ने खिलौना बनाया, कोई शिवलिंग बनाया, कोई आदमी बनाया, कोई खाने का सामान बनाया, इस तरीके से क्ले में से बना दिया. तो फर्स्ट रूल वाज एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज. ठीक ठीक. द सेकंड रूल इज किसी की आवाज डबल आ रहा है. हाँ, આવે છે, અવાજ આવે છે. मयूर भाई नायक. नहीं, मैं बंद कराऊं, डोंट वरी, गो अहेड. So the second rule, every effect is nothing but a cause in different form. तो पहला रूल था, जो भी उन्होंने शिवलिंग बनाया उसका कॉज था क्ले, तो ये एक पहला रूल हमने उनको बता दिया. दूसरा ये था कि जो शिवलिंग बनाया या खिलौना बनाया कोई भी, दैट इज नथिंग
बट क्ले इन अ डिफरेंट फॉर्म। ये दूसरा हो गया। अब तीसरी चीज, फ्रॉम द इफेक्ट, इफ यू रिमूव द कॉज नथिंग रिमेन्स। अब इफेक्ट है कि जैसे वो खिलौना बनाया, उसमें से क्ले हटा दो तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर किसी भी चीज में से ब्रह्मन, बिकॉज ब्रह्मन इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, कहीं से भी वो अगर हटा दो तो अल्टीमेटली नथिंग रिमेन्स। एक ये बात थी कि मेरे को शेयर करना था कि जब हम वो गोल्ड की बात कर रहे थे, और गोल्ड से रिलेटेड भी इसी श्लोक में स्वामी चिन्मयानंद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, कि एक आदमी की मृत्यु हो गई और उसके बेटों के पास कोई पैसे वैसे नहीं रहे, लेकिन उनके पास मंदिर रहा था। तो मंदिर में आइडल्स थे, ये हनुमान जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता जी थी और राम जी थी। तो पैसे की जरूरत पड़ी तो पहले वो हनुमान जी को बेचा है, सोने का। तो पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने, उनको कुछ पैसे मिल गए। अब दूसरी बार जरूरत पड़ी तो लक्ष्मण जी को बेचा है। तीसरी बार और पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर सीता जी को बेचा है। अब लास्ट में और पैसे की जरूरत, तो राम जी बचे थे तो वो भी बेचने चले गए। तो सुनार ने राम जी के बहुत कम पैसे दिए। तो वो उससे झगड़ा करने लगा कि तुमने हनुमान जी और उसके तो ज्यादा पैसे दिए और राम जी के कम पैसे दे रहे हो। अब वो कह रहा है कि तुम इसमें सोना कम है तो मैं क्या करूं? तो वो दृष्टि की जब बात थी, तो जब हम बात कर रहे थे वो सब में वो, मतलब गाय में कुत्ते में एक ही देखता है, तो सुनार तो सोना ही देखता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और इसी जगह जब इस श्लोक का जो टाइमिंग है, इससे पहले वाला श्लोक रश्मिन भाई हाँ। और ये वाला श्लोक, उस पहले वाले श्लोक में कि आपके ब्रह्म को जानने के बाद इंटेलेक्चुअली जब आप जान लेते हो और जिसको एक्सपीरियंस कर लेते हो, आपके सब पाप धुल जाते हैं। तो आपके जब सब पाप धुल जाते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होता है हाँ, कि आप सभी को ऐसे ही देखते हो। तो बराबर। वो जो टाइमिंग है उस श्लोक के बाद इस श्लोक को लेके आना, और ये जो दृष्टि की बात है, और जैसे हमने कहा कि उस दृष्टि को हम कैसे देखेंगे, फिर हम गाय को देखें कि किसी को भी देखें, तो वो तो मैजिक है। हम उसको देखें तो मैजिशियन को याद करें कि ये तो उस मैजिशियन का ही मैजिक है, कि फिर वो मैं कुत्ता देख रहा हूँ कि गाय देख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली फिर वो दृष्टि जो है, वो विजन मेरी एक ही हो जाएगी। तो दिस वाज रेफरेंस टू वर्स 18। लेकिन जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में आ जाता है, लेकिन जस्ट आई कंप्लीट 2 मिनट। जब वर्ण का मीनिंग आता है तो वर्ण मीन्स कलर। ये लोगों की कैटेगरी बांटने के लिए नहीं थी, और वहां पे तीसरे अध्याय में भगवान खुद कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो मैंने ही क्रिएट की है। तो ऐसा नहीं है, तो ये मैं वो करने वाला मैं हूं, और वहां पे वो गुणों का रेफरेंस देते हैं। और जब कलर आती है, कलर की बात आती है, तो दैट इज कलर ऑफ योर माइंड, नॉट द कलर ऑफ योर बॉडी। अब वो कैसे, कि हम देखिए, हम अपने ऑफिस में ही बात करें कि हर व्यक्ति सेम काम नहीं कर सकता। किसी को हम ऊंचा और नीचा नहीं कहते। जिसको हम क्लर्क के पोस्ट में रखते हैं, क्या उसको हम मैनेजर की पोस्ट में रखते हैं? नहीं रखते। ये वर्तन तो हम अपने ऑफिस में भी करते हैं, अपने जीवन में भी करते हैं, क्योंकि उसका माइंड ऐसा है कि वो जो, और ऐसा नहीं है कि उसका काम नीचा हो जाता है या व्यक्ति नीचा हो जाता है। हर व्यक्ति इस समाज में कुछ ना कुछ दे रहा है, और वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से दे रहा है, अपनी मन की अवस्था से दे रहा है। इसीलिए वर्ण व्यवस्था आई। जो जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान था, जो टीचर्स बने, उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बने, उनको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, और उनको नाम दिया गया इनफैक्ट। और उसके बाद जो व्यापार और ये सब देखते थे, उनको वैश्य का दिया गया। और जो बाकी का, उन सबकी जो जरूरतें पूरी करते थे, जो जरूरत थी, उनको फोर्थ कैटेगरी, एक्चुअली अल्टीमेटली शूद्र को जो फोर्थ कैटेगरी है, उसको हमने अभी अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत खराब देखने लगे हैं। पर इसका मतलब, शूद्र का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो खराब व्यक्ति है या निम्न व्यक्ति है। तो ये जो इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए, दैट इज द कलर ऑफ माइंड, इस तरीके से इसको शेप दिया गया था। और ये हम अपने एक ऑफिस में, अपने घर में ये हम अनुभव करते हैं। जस्ट ये एक छोटी बात थी कि कोई इसमें कोई वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। इट वॉज द योर, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, यू आर अलॉटेड योर वर्क। दैट वॉज वर्ण व्यवस्था। Yes, sir. Zarna, you wanted to say something? जी सर, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट अबाउट शाम्बुक प्रसंग। हाँ। तो जहां तक मेरा रीडिंग है, रामचरित मानस में शाम्बुक के प्रसंग का वर्णन नहीं है।
उसका कारण है एट द जानना। सेम टाइम जी। से किसी ने बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी है कि तुलसीदास हम्म, एक सॉफ्ट पर्सनालिटी थी। हम्म। कहीं भी अन्याय आवे वो बात उन्होंने मानस में लिखी नहीं है। जैसे अ, रामायण में आता है कि राम ने सीता का त्याग किया, हाँ, उनको जंगल में भेज दिया। वो नहीं आता है मानस में, वो प्रसंग ही नहीं आता है। तो मानस को आप एज ए सुप्रीम लिटरेचर, एज ए धर्म ग्रंथ मानो, मगर वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। या आई रिस्पेक्ट दैट सर। आगे वाल्मीकि रामायण पे आते हैं तो जो हाँ हाँ। संतों से सुना है, राइट। तो वाल्मीकि रामायण में शाम्बुक का जो प्रसंग है वो उत्तरकांड में है। हम्म, और जो बेसिकली इट इज टेकन एज, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मूल रामायण। उत्तरकांड इज कंसिडर्ड एज एक्सट्रापोलेशन। अच्छा, ओके। उसमें चर्चा है और कई विद्वान, कई संत उत्तरकांड को मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा भी नहीं मानते। ओ, ओके। आई डिड नॉट नो दिस, यस। बट सो ये जो थैंक यू मैंने वेरी संतों से प्रसाद पाया, आई थॉट आई शेयर। मच। ओके, वेरी गुड। अशोक भाई, यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस उत्तरकांड ऑफ रामायण? नहीं, मैंने ये नहीं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाता, लेकिन ये मैं समझता था कि रामचरितमानस का में ये पार्ट नहीं है। हाँ और हाँ कभी मेरी स्वामी जी से डिस्कशन हुई थी एक बार क्योंकि आपने जब रेफर किया था तो मेरा स्वामी जी से ऐसा प्रश्न हुआ था, तो उन्होंने बराबर। कहा था कि रामचरितमानस में तो ऐसा कोई प्रसंग आता नहीं। नहीं, नहीं आता है, बराबर। हाँ। ओके फ्रेंड्स, तो shall we conclude today's talk? या 7:40 हो गए। हाँ हाँ, मयूर भाई प्लीज प्लीज कुछ कह रहे हैं मयूर हाँ, भाई। मयूर भाई, बोलो बोलो। झरना ने जो सॉरी आई मिस दैट, मेरा बीच में चला चला गया था। आपने वो दूसरा क्या बोला उत्तरकांड में? हेलो। जगन्नाथ, Uttarkand is मयूर not a भाई part of the asking you। original Ramayana. This is what she said. अच्छा, उत्तरकांड में भी नहीं, उत्तरकांड में है ऐसा? Uttarkand is उत्तरकांड। not part of the main अच्छा अच्छा, Ramayana. ओके ओके Valmiki Ramayana is what she said. Yeah. ओके ओके। मतलब जब तक और क्लैरिटी नहीं आती हम मान लेते हैं कि शंभू की वाला स्टोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस रामायण, तब तक एक मत से एक बराबर, बार ये मान के चल लेते हैं। ठीक ओके है ना? बराबर। ओके, हाँ। श्योर। और थैंक यू बेसिकली थैंक यू। दीपावली का टाइम है तो हम अच्छी बात करेंगे, फिर ये शंभू की बात नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी को थोड़ा दूर ही रखेंगे। हाँ जी। So today we have discussed 17th and 18th slok, and next नवंबर में we'll start with 19th श्लोक। और नवंबर की डेट अभी नक्की करेंगे। Hmm. नवंबर में फ्राइडे है, 28 7/14। नवंबर और 28 ने 21 के बीच। हाँ, 28 नवंबर। why would you want to go to the end? Absolutely. 21st is also the 21st is a power summit. 14th रख लीजिए सर, 14 फिर, या तो 14 भी लू। अरे भाई के जी, मेरे को रश्मिन भाई से क्यों मरवा रहे हो? क्यों? 14 की मैं रश्मिन भाई की, रश्मिन भाई मेरे को डांटते हैं, मेरे से फाइन लेते हैं। मैं नहीं अपन कोई रास्ता नहीं निकालते हैं मीर जाएगा। भाई मिलके। अभी ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी है रश्मिन भाई, रास्ता निकालेंगे। ના ના, હું તો એન્ફોર્સમેન્ટ નો ઓફિસર છું। 28 को रख लो ना। 28 ठीक है। सबको कन्वीनियंट है 28? हाँ जी, जी सर। ओके, 28 नवंबर विल बी आवर नेक्स्ट मीटिंग स्टार्टिंग विथ 19th श्लोक। ओके, थैंक थैंक यू, यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। सर दीपावली की सबको Thank you. एडवांस में बहुत सबको सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। सबको यस, बहुत सारी हैप्पी शुभकामनाएं। दिवाली टू एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू यस ईयर। यस थैंक यस, यू। विश एवरीवन हैप्पी दिवाली। यस सर। मिठाई बहुत खाओ और डायबिटीज को इग्नोर करो। Rashmin bhai, हाँ, ओह, last time you said कि you will take something on मन ऑन। मन हाँ, माइंड माइंड माइंड। यस, या તો એવું કંઈક છે, એ બહુ મન is a very critical item in our body. Whether I mean it exists or not, I don't know, but it really exists. I mean, if you do this a dissection, nothing comes out. But you will say something on man. So what man is,
and how to Yeah. control, train, Hmm. etc., regulate, etc. That is one thing. And secondly, sometimes when a time permits, etc., you may take on, karma, so karma theory, which will be very, very big thing, It will be really change our life. But karma theory, though, Krishna Bhagwan is going to discuss as we proceed further. अच्छा Hmm. पर मन ऊपर तो तब आप कुछ बोलिए ना. Yeah, on mind, I have completely different thoughts than the thoughts expressed by most of the writers. Whatever you thought, whether it is different or same, doesn't matter. We'll learn something new. Sure, sure. We'll discuss next time. But in case I forget, you remind me in the beginning only, so we Okay, can discuss. Huh? all right. Okay. Thank But you. thanks to chair, means to you and to all participants. I have learned a lot. Thank you. नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा. Namaskar. नमस्कार. नमस्कार.